اور اب عالمی منظر کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے مغربی کنارے پر کی جانے والی غیر قانونی آبادکاریوں میں شامل کمپنیوں کی فہرست جاری کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اس تعلق سے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ یہ تفصیلی رپورٹ دیکھیے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ میں ایسی کمپنیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو غزہ کے مغربی کنارے پر غیر قانونی آبادکاریوں میں ملوث ہیں اور ان کی اسرائیل سے کاروباری تعلقات ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے جو فہرست جاری کی ہے اس میں 112 ایسی کمپنیوں کے نام شامل ہیں جو فلسطینی علاقے غرب اردن کے ان حصوں میں منافع کما رہی ہیں جہاں اسرائیل نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس میں سے بیشتر کمپنیوں کے دفاتر اسرائیل میں ہیں، جس میں بینک، ٹیلی فون اور تعمیراتی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ ان میں سے 94 کمپنیاں اسرائیل اور 18 دیگر ممالک کی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ کمپنیاں امریکہ، فرانس، نیدرلینڈ، لگزمبرگ، تھائی لینڈ اور برطانیہ میں لسٹڈ ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمپنیوں کی سرگرمیوں نے انسانی حقوق سے متعلق مخصوص خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غرب اردن کے مقبوضہ علاقوں میں 100 سے زائد کاروباری کمپنیاں عالمی سطح پر تسلیم شدہ فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کی حمایت کر رہی ہیں۔ فلسطین کے غرب اردن کے مقبوضہ علاقوں پر اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی مانا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے علمبردار تنظیم ہیومن رائٹس کونسل کے مطابق اس میں ان کمپنیوں کی فہرست تیار کی گئی ہے جن کی سرگرمیوں سے انسانی حقوق کے پامال ہونے کے خدشات پائے جاتے ہیں۔ اس میں بینکنگ کے ساتھ ساتھ بستیوں کے تعمیراتی کام میں سہولت فراہم کرنا، سیکیورٹی فراہم کرنا اور منہدم کرنے کا ساز و سامان فراہم کرنے جیسی کارروائیاں شامل ہیں۔ HRC کے ترجمان مشیل بیشلیٹ کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ کا مطلب ان کمپنیوں کو نہ تو بلیک لسٹ کرنا ہے اور نہ ہی ان پر یہ الزام عائد کرنا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقوں میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ تاہم اس طرح کی رپورٹ سے ان کمپنیوں کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے اور مقبوضہ علاقوں میں یہودی آبادکاری کو روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے مقصد سے ان کمپنیوں کو بائیکاٹ کے لیے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ پر سخت نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ HRC اسرائیل کا نام داغدار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نیتنیاہو نے کہا کہ یہ تنظیم انسانی حقوق پر کام کرنے کے بجائے اسرائیل کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ دوسری طرف فلسطین حکام نے اس فیصلے کو سراہا ہے۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے اسے عالمی قوانین اور سفارتی کاوشوں کی جیت قرار دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے لیبیا میں جنگ کے خاتمے کے لیے 55 نکاتی روڈ میپ کی توثیق کر دی ہے۔ ساتھ ہی سلامتی کونسل نے تیل سے مالا مال شمالی افریقی ملک میں تشدد میں حالیہ اضافے کی مذمت کی ہے۔ برطانیہ کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کو 15 رکنی سلامتی کونسل نے 14-0 سے منظور کر لیا۔ روس نے ووٹنگ سے پرہیز کیا۔ حالانکہ روسی صدر ولادیمیر پوتین ان 12 لیڈروں میں شامل تھے جو 19 جنوری کو برلن میں ہوئی ایک کانفرنس میں اس منصوبے پر راضی ہو گئے تھے۔ روسی سفیر ویزیلی نے کہا کہ ماسکو حکومت کو اس بارے میں شدید شکوک و شبہات ہیں کہ آیا اس قرارداد پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے حکومتوں کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ 19 جنوری کو برلن میں ہوئی ایک کانفرنس میں روسی صدر ولادیمیر پوتین نے دیگر عالمی لیڈروں کی موجودگی میں اس منصوبے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ واضح ہے کہ لیبیا سن 2011 سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔ The adoption of this resolution, the Security Council sent an important signal for peace in Libya, reaffirming the concrete commitments of all participants of the Berlin Conference. It is crucial for Libya that we are able to send this signal of unity. Мы сомневаемся, что такие ультиматумы подстегнут ливийцев скорее договариваться. Мы искренне хотим, чтобы резолюции Совета Безопасности по Ливии исполнялись. Хотели, чтобы этот документ был жизнеспособным. Но уверенности в этом на основании текста, который мы получили, у нас нет. اعتبر قرار اليوم وبما لا يدعو للشك الإعلان الرسمي عن فشل المغامرة العسكرية التي أقدم عليها المعتدي وداعميه والمراهنين عليها، وفشل مشروع اغتصاب السلطة بالقوة والانقلاب على الشرعية. وها نحن اليوم نحاول من جديد العودة للحوار والحل السلمي الذي كنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إليه في أبريل الماضي.
उधर लीबिया के नेशनल आर्मी के तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के तैयारों को मुल्क में उतरने से रोकने के इल्जामात की तरदीद की है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद अल मिस्मारी ने कहा कि इन इल्जामात पर हमें ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का हर उस इलाके में इस्तकबाल किया गया जहां लीबिया नेशनल आर्मी का कब्जा है। मिस्मारी ने कहा कि तराबलस के नजदीक मेटिगा एयरबेस मिलिट्री ऑपरेशन इलाका है और ये ममनुआ फजाई जोन है ताकि किसी भी दहशतगर्दाना हमले से परवाजों और मुसाफिरीन को बचाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि फिल वक्त ये एयरबेस तुर्की की फौज के कंट्रोल में है। वज़ीर कि लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा मिशन ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि उनकी परवाजों को लीबिया में उतरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मिशन का कहना है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों में ऐसा मुतादिद मरतबा हुआ है जब उनके तैयारों को उतरने की इजाजत नहीं दी गई। الاستغراب أو شد الاستغراب مثل هذه التصريحات وهذه البيانات في هذا الوقت ومن السيد غسان سلامة من البعثة التي مرحب بها في كامل المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة العربية الليبية. نتحدث على مطارات، نحن مطار عتيقة داخل منطقة الحظر الجوي. منطقة الحظر الجوي نحن أعلناها أولا خوفا على الطائرات وعلى المسافرين من أي عمل إرهابي وينسب للقوات المسلحة. الإذن في الهبوط في هذه القاعدة الجوية الليبية الكبيرة جدا ليس من الليبيين، ليس لا من القيادة العامة وليس من السراج كذلك، بل تأتي من القائد العسكري أو الحاكم العسكري التركي في طرابلس. और अब खबर इराक से है जहां बगदाद में सैकड़ों खवातीन ने हुकूमत के खिलाफ मार्च निकाला। इस मौके पर खवातीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो बदनवानी, बेरोजगारी, नाकिस खिदमात और बुनियादी सहूलतों के फुकदान के खिलाफ जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की हिमायत करें। मुजाहिरीन ने दीगर इराकी खवातीन को भी एहतजाज में शामिल होने की अपील की और इराक और इसके हुक्मरां तबके में मौजूदा सियासी निज़ाम के खात्मे का मुतालबा किया। इराक के शहर नसीरिया और बसरा में भी खवातीन ने एहतजाज किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई माह से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में अब तक कम से कम 500 अफराद हलाक जबकि हजारों जख्मी हो चुके हैं। نناشد الأمم المتحدة بالتدخل في حماية تظاهراتنا السلمية لأننا لا نحمل لا بندقية ولا سكين، وتوالت القوات الغاشمة في الضرب والقتل تقتل شبابنا وتسرق شاباتنا وتقتل الشابات ولن يسمحوا لنا بالتظاهر। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के वज़राए दिफा का 2 रोज़ा इजलास आज जुमेरात से ब्रसेल्स में शुरू हो गया। इस इजलास के एजेंडे पर अफगानिस्तान का मुस्तकबिल और रूस की उभरती क़ुव्वत के खिलाफ यूरोपीय अक़वाम के दिफाई इक़दामात पर गौर करना शामिल है। इजलास से खिताब करते हुए वज़राए दिफा ने रूस के मिसाइल सिस्टम पर तशवीश का इजहार किया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टेनबर्ग ने वज़राए दिफा के इजलास को अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों की अहमियत और एतराफ़ के लिए अहम करार दिया है। We will also discuss our response to the ongoing Russian missile buildup, both conventional and nuclear. NATO has been united on Russia's breach of the INF Treaty, consulting closely over many years and agreeing on every step. Last June, we agreed a balanced and defensive package of measures to respond to Russia's SSC-8 missiles. Today, we will take a broader look at the full range of Russia's short and intermediate range missiles, while remaining fully committed to arms control and disarmament. उधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टेनबर्ग का कहना है कि इराकी हुकूमत ने तरबियती मकासद के लिए नेटो को इराक में रहने के लिए हरी झंडी दिखाई है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने ब्रसेल्स में जुमेरात को कहा कि इराकी हुकूमत ने नेटो की अफवाज को मुल्क में रहने की इजाजत दी हुई है। स्टोल्टेनबर्ग का यह ऐलान इराक के मुतालबे के हफ्तों बाद सामने आया है कि जिसमें इराकी पार्लियामेंट ने अमेरिका और नेटो की फौज से मुल्क से निकल जाने को कहा था। इराकी हुकूमत ने मुतालबा बगदाद एयरपोर्ट के बाहर ईरान के सरकर्दा जनरल कासिम सुलेमानी के अमेरिका हमले में मौत के बाद किया था। उन्होंने ये भी कहा कि नेटो ने अमेरिका और तालिबान के माबैन अमन मुज़ाकरात की पुरजोर हिमायत की है। स्टोल्टेनबर्ग ने मजीद कहा कि नेटो असलहे की नई दौड़ की रोकथाम के लिए पुरअज़्म है और असलहे पर काबू पाने के लिए काम करता रहेगा। Today, Allied ministers reaffirmed our support to Iraq
and agreed in principle to enhance NATO's training mission. In the first instance, this will consist of taking on some of the global coalition's current training activities. Ministers also agreed to explore what more we can do beyond this first step. Let me be clear. NATO is in Iraq on the invitation of the Iraqi government. And we will only stay in Iraq as long as we are welcome. अमेरिका अफगानिस्तान में अपने फौजियों की तादाद घटाने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। अमेरिका के वजीर दिफा मार्क एस्पर का कहना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की तादाद 8,600 तक ले जाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की तादाद घटाकर 8,600 तक ले जाने की तजवीज पर गौर किया जा रहा है। मार्क एस्पर ने कहा कि ऐसा अफगानिस्तान में मौजूद कमांडर्स की सिफारिशात की रोशनी में सोचा जा रहा है कि हम अपने फौजियों की तादाद बासानी 8,600 तक ले जा सकते हैं। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा कि हमने 12 कहा है कि मैदान जंग में मौजूद कमांडर्स की सिफारिशात की रोशनी में हम अपने फौजियों की तादाद बासानी 8,600 तक ले जा सकते हैं। अमरीकी वजीर दिफा ने यह भी कहा कि हम पुरएतमाद हैं कि हम इतनी तादाद के साथ अफगानिस्तान में अपना मिशन जारी रख सकेंगे। एस्पर ने बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में सहाफियों से बातचीत करते हुए ये बयान दिया। इस पर सवाल आया कि ये इनखला तालिबान से बातचीत के नतीजे से भी मशरूत है। एस्पर ने कहा कि तशद्दुद में कमी की शर्त ज़ेरे गौर है। मैं अमरीकी इत्तेहादियों से इस बारे में भी बातचीत कर रहा हूँ। ताहम इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान से तमाम अमरीकी फौजियों के इनखला की बात नहीं हो रही है। वहीं दूसरी जानिब तालिबान ने अमरीकी ओहदेदारों से कई हफ्तों की बातचीत के बाद वाशिंगटन से मुतालबा किया कि उनकी जानिब से इब्तदाई तौर पर 7 रोज़ा मुख्तसर जंगबंदी की पेशकश का मुस्बत जवाब दिया जाए, वरना वो मुज़ाकरात अधूरे छोड़कर चले जाएंगे। इत्तलात के मुताबिक तालिबान की जानिब से मुख्तसर जंगबंदी की पेशकश इसलिए की गई है कि वो हतमी अमन मुआहदे के बगैर किसी बाज़ाब्ता जंगबंदी का वादा नहीं करना चाहते। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि तालिबान के साथ तशद्दुद में कमी का मुआहदा चंद दिनों में तय पा सकता है और इस ताल्लुक से गुज़िश्ता दिनों अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से फोन पर अलग अलग गुफ्तगू की थी। तालिबान के साथ जारी मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। अफगान सदर अशरफ गनी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने उन्हें आगाह किया कि तालिबान ने तशद्दुद में नुमाया कमी की तजवीज़ दी है। तालिबान की तशद्दुद में नुमाया कमी की तजवीज़ को सदर गनी ने खुशाइन करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ेंगे। बरतानिया के वज़ीर ख़जाना साजिद जावेद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। उनकी जगह ऋषि सोनिक ने वज़ारत ख़जाना का कलमदान संभाल लिया है। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपनी काबीना में तब्दीलियां की हैं। साजिद जावेद को वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने वज़ीर दाखिला के ओहदे से हटाकर वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया था। इत्तलात के मुताबिक साजिद जावेद को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा चूंकि उन्होंने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के जरिए अपने तमाम मुशीरों को बर्खास्त करने की हिदायत को मानने से इनकार कर दिया। साजिद जावेद के करीबी ज़राए ने बताया है कि उन्होंने अपने तमाम मुशीरों को बर्खास्त करने का हुक्म यह कहकर मानने से इनकार कर दिया कि कोई भी खुददार वज़ीर ऐसी शराइत नहीं मान सकता। अमेरिका के एक और शहर में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है। अमेरिका की ताकतवर तरीन काउंसिल्स में से एक सिएटल सिटी काउंसिल के बाद अब रियासत मैसाचुसेट्स के शहर कैम्ब्रिज की सिटी काउंसिल ने CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। कैम्ब्रिज सिटी काउंसिल में यह करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। सिटी काउंसिल की करारदाद का जनूबी एशियाई कम्युनिटीज और तमाम मज़ाहिब की जानिब से खैर मकदम किया गया है। कैम्ब्रिज सिटी काउंसिल ने जोर दिया कि इसका कांग्रेस वफ्द अमरीकी कांग्रेस में हिंदुस्तान में इस तरह की पॉलिसियों के निफाज को रोकने के लिए होने वाली कानून साजी में मदद करेगा। चीन में कोरोना वायरस के तरीक़े तशख़ीस में तब्दीली के बाद इस वायरस से हलाकतों और मुतासर अफराद की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है।
चीन के सूबे हुबाई के महकमे सेहत के हुक्काम का कहना है कि 12 फरवरी को कोरोना वायरस से 242 अफराद हलाक हुए हैं, जो एक रोज में हलाक होने वाले अफराद की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। चीन में कोरोना वायरस से 12 फरवरी को 242 अफराद की मौत हुई। इस तरह इस मुहलिक वायरस से हलाकतों की तादाद 1350 से ज्यादा हो गई है। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद में भी जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। मजमूई तौर पर सिर्फ बुध के रोज ही 14,840 अफराद में इस वायरस की तशखीस की गई। अब इस मूजी वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 60,000 से तजावुज कर गई है। कोरोना वायरस के मरकज हुबाई सूबे में इस वायरस से निपटने के लिए तरीक़े इलाज में तब्दीली लाई गई है, जिसके बाद हलाकतों में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। हुबाई में अब न्यूक्लिक एसिड के तरीके पर इन्हिसार करने के बजाय अगर किसी शख्स में अलामात जाहिर हो रही हैं और सिटी स्कैन में उनके फेफड़े मुतासरा दिखाई दे रहे हैं तो वो तस्दीक शुदा केस ही समझा जा रहा है। हुक्काम ने कोरोना वायरस की तशखीस के लिए कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन का तरीका इख्तियार किया है। इससे पहले RNA टेस्ट के जरिए मरीजों में कोरोना वायरस की जांच की जा रही थी। वुहान में 12 फरवरी को होने वाली 242 नई अमवात में 135 ऐसे केसेस थे जिनमें सिर्फ अलामात जाहिर हुई थी और बाकायदा तशखीस नहीं हुई थी। इसका मतलब ये है कि बीमारी की नई तारीफ के बगैर भी हुबाई में बुध के रोज हलाकतों की तादाद 107 थी, जो कि एक बड़ी तादाद है। दूसरी जानिब हुक्काम ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में नाकामी पर हुबाई में कम्युनिस्ट पार्टी के 2 अहम लीडरों को भी ओहदों से हटा दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों रहनुमाओं को ओहदों से हटाए जाने की वजूहात नहीं बताई गई, ताहम दोनों रहनुमा सूबे में इंतहाई अहम हैसियत रखते थे। वाज़ेह है कि वुहान में कोरोना वायरस के फैलाव में नाकामी पर महकमा सेहत के कई हुक्काम को पहले ही मुलाजमतों से फारिग किया जा चुका है। वहीं एक क्रूज शिप जिस पर 2000 से ज्यादा अफराद मौजूद हैं, कंबोडिया की बंदरगाह पर खड़ा है। 5 ममालिक की तरफ से इस खदशे के सबब कि इसके कुछ मुसाफिर वायरस से मुतासिर हो सकते हैं, इसका रुख मोड़ दिया गया था। जापान, ताइवान, गुआम, फिलिपाइन और थाईलैंड से इनकार के बाद MS वेस्टरडम नामी जहाज जुमेरात की सुबह कंबोडिया पहुंचा। इन तमाम ममालिक ने इस जहाज को अपने पास लंगर अंदाज होने से रोक दिया था। हालांकि जहाज पर कोई भी बीमार शख्स मौजूद नहीं था। इस दौरान जापान के शहर योकोहामा में डायमंड प्रिंसेस नामी जहाज पर 44 केसों की तस्दीक हो चुकी है। इस इजाफे का मतलब कि जहाज पर मौजूद 3700 अफराद में से 218 इस वायरस के शिकार हुए हैं, जबकि अब तक तमाम लोगों की टेस्टिंग भी नहीं की गई है। WHO का कहना है कि वबा के खात्मे की पेशगोई करना इंतहाई क़ब्ल अज़ वक्त होगा। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर टेड्रोस एधनोम ने खबरदार किया कि वबा कोई भी मोड़ ले सकती है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह बराए इमरजेंसी माइकल रायन ने कहा कि आलमी इदारा सेहत चीन से बाहर सामने आने वाले 441 केसेस में से 8 को छोड़कर बाकी तमाम में वायरस की मुंतकली के जरिए का पता चलाने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उस वक्त इस वबा की शुरुआत और इख्तिताम के बारे में कोई भी पेशनगोई करना इंतहाई क़ब्ल अज़ वक्त होगा। वहीं WHO की चीफ साइंसदान सौम्या स्वामीनाथन ने मीडिया को बताया कि लेबोरेटरी में तैयारी और आजमाइश के लिए 4 मुमकिना वैक्सीन की फंडिंग की गई है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम वैक्सीन तलाश कर लेंगे, इसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा। वैक्सीन रातों रात तैयार नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उधर वियतनाम के दारुल हुकूमत के करीबी देहात में कोरोना वायरस की मौजूदगी के शुबे में 10 अफराद की आबादी को एहतियाती तौर पर अलग थलग कर दिया गया। सोन लुई नामी ये इलाका दारुल हुकूमत हनोई से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन से बाहर किसी और मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को अलहदगी में भेजने का यह पहला हुकूमती इकदाम है। सोन लुई एक जरखेज वियतनामी इलाका करार दिया जाता है। मुल्की वजारत सेहत ने निसफ दर्जन अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस की है। वायरस की निशानदही के बाद करीबी इलाके में स्प्रे करने के साथ साथ लोगों की नकलो हरकत महदूद करने के लिए चेक पॉइंट्स भी बना दिए गए हैं। वहीं हिंदुस्तान का कहना है कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रहा है। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने जुमेरात को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम इस वायरस को हिंदुस्तान में फैलने से रोकने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं।
یہ جو ایشو ہے اس کو ہم لوگ لگاتار سب لیولز پر یہ اسٹارٹنگ فرام دا مانیٹرنگ پرسنلی بائی دا پرائم منسٹر ہمسیلف، پرائم منسٹرس آفس سے لے کر کیبنٹ سیکریٹریٹ تک اور اس منسٹری میں اور دیش بھر میں سبھی ساتھ میں ریلیٹڈ منسٹریز کے ساتھ بھی کیبنٹ سیکریٹری اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارا ایکسٹرنل افیئر سر وہ تو لگاتار ٹچ میں ہے نا. ابھی ایمبیسی از ان ٹچ ود، مطلب وہ تو ہائی لیول پہ تو ٹوٹل ایوری تھنگ از بینگ کوآرڈینیٹڈ. بٹ ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ ایک شپ کے اوپر جو اسٹریٹجی ہے اس پہ کچھ لوگ پازیٹیو ہیں، کچھ لوگ کوارنٹائن میں ہے، سب کیا ہوا ہے، تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے آدمی کو بیچ میں سے ہی آپ نکال دیجئے. وہ تو وہاں تو دیکھیے وہ تو جب وہ جو جاپان کی سرکار کر رہی ہے وہ بھی ان کے سب کے لارجر انٹرسٹ میں ہی کر رہی ہے نا. وی کانٹ سے کہ ہمارے اس میں جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ الگ پالیسی بنائیے. تو اگر ہم 645 کو ہم لا سکتے ہیں تو ان کو بھی جب لانے کی بات ہوگی تو وہ بھی ہم پازیٹیولی ہی ٹیک اپ کریں گے. اس میں تو کوئی سوچنے کا بات ہی نہیں. آگے بڑھیں گے. شورش زدہ ملک افغانستان میں برف کی پہاڑی پر امن کی عبارت لکھی جا رہی ہے. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں افغانستان میں دھیرے دھیرے مقبول ہو رہے گیم اسنو بورڈنگ کا. افغان نوجوانوں میں نسبتاً اس نئے گیم اسنو بورڈنگ کے تئیں کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے. یہ نظارہ برطانیہ، امریکہ، ناروے یا روس کا نہیں بلکہ نوجوان برف کی ڈھلان پر پھسلتے ہوئے نیچے کی جانب جاتے ہیں اور خوب لطف اندوز ہوتے ہیں. کابل اپنی کنکریٹ کی دھماکے کی دیواروں اور سخت حفاظتی چوکیوں کے لیے مشہور ہے، لیکن ہندوکش کی پہاڑیوں پر اسنو بورڈنگ کے شائقین برف کی چادر پر کھیل کا مزہ لے رہے ہیں. 26 سالہ کریم فیضی 2016 میں جوڑش میں مبتلا افغانستان میں برف کی پہاڑی پر نوجوانوں کا حوصلہ قابل دید ہے. افغانستان میں اسنو بورڈنگ کے ذریعے ہی اگر امن کی بہار آ جائے تو کیا کہنے. بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو. تتلیاں کینیا کے سماج میں حاشیے پر پڑے افراد کی زندگی میں رنگ بھر رہی ہیں. تتلیوں کے افزائش کی اسکیم سے بیشتر خواتین جڑی ہیں. ان تتلیوں کو مختلف ممالک کے بٹر فلائی پارکس کے لیے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. استوائی جنگلات کا علاقہ ارابو سوکو کے یونیسکو کی نگرانی میں کام کرتا ہے. آپ یہ خاص رپورٹ اور دلچسپ رپورٹ دیکھیں اور مجھے اجازت دیجیے. آداب. رنگ برنگی تتلیاں، پھولوں کا رس چوستی تتلیاں، درختوں پر ادھر ادھر منڈراتی تتلیاں. کینیا کے استوائی علاقے کے جنگلوں میں بہار آئی ہے اور اس بہار نے یہاں ساحلی علاقوں میں آباد اقتصادی طور سے کمزور اور پسماندہ طبقے کے افراد کو باوقار زندگی جینے کی وجہ دی ہے. Kabla ya huu mradi tulikuwa ni mambo na kupasua kuni, tunaenda msitu, wamama wengi unapata wamejazana pale kwa msitu wanapasua kuni, ni kama kuharibu mazingira ya msitu. Lakini kufikia sasa wakati mradi umekuja kwetu, tumeona ya kwamba unatusaidia, inatupatia school fees, watoto wanasoma vizuri. کائپو بٹرفلائی پروجیکٹ کی شروعات 1993 میں ہوئی تھی. اس پروجیکٹ سے اب 26 گروپ جڑے ہیں جو تتلیوں کی افزائش کر رہے ہیں. ان میں بیشتر خواتین ہیں. ارابکو جنگل کے اطراف تقریباً 1 لاکھ افراد رہتے ہیں جن کی روزی روٹی جنگلوں سے ہی چلتی ہے. لیکن ان کاموں سے جنگلوں کو نقصان پہنچتا ہے، جبکہ بٹرفلائی اسکیم کا ایک اور مثبت پہلو یہ ہے کہ اس سے جنگلوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. Kusema kweli mradi huu kina baba waliukataa, lakini ukiangalia wamama wengi wameingia katika mradi huu. Mradi huu hauna gharama kubwa sana, ni rahisi kutekeleza. Ndiposa unakuta hata mama akiwa na shughuli zake pale nyumbani anaenda anashika vipepeo anaviweka anaendelea na kazi yake pale, na umewaletea faida kubwa sana kwa sababu wengi wamekuwa na uwezo wa kimaisha, wamesomesha watoto wao, wametegemewa pale nyumbani na wamejiendeleza hata wao wenyewe. اس پروجیکٹ سے جڑی خواتین ہفتے میں $20 سے $30 تک کما لیتی ہیں، جس سے وہ اپنا پریوار بہتر طریقے سے چلا سکتی ہیں. بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو.